previously what we had discussed, we were discussing on the conditional operator. In Yeah. conditional, hello. Okay, so previously we were discussing on the conditional operator, and in conditional means what? There will be some condition. Based on that, we have to we have to get the data, or we have to we have to execute our code. But those execution of code will be depend on the some condition. If condition is correct, means condition got satisfied, we will get the output. If condition not satisfied, we will get something as a warning or some output, means that will be something different output. Okay, so in conditional operator, we had looked over the if condition, if and else, then that's it. Yeah, if else, yeah, if else if means for multiple condition. Today we will look over the switch condition. Okay, so in the switch, when it will work. So in the switch condition, when the condition will get satisfied. Okay, means like when we was writing else if part. Let me copy this code. Already we had done this code. There is nothing new in this one. My screen is visible. Yes, sir. Okay. While means studying time, we most of the case we are going with the console only. But when you all are practicing, don't go with console. Yeah, you can go with console, but try to do something extra. So you will get more, means try to handle more and more complicated one. So you will get more clarity picture on that. Okay, so how we were handling the condition when we have multiple, we have to means handle multiple condition. So this was the code previously we were doing. So what we had done, we had used if condition. If this will satisfied, we will get good morning. If this will not satisfied, we have another condition. Else if time equal to 12 o'clock, console will be afternoon. Another condition, if time will be 19, condition will be means output will be something good evening. Else means these all condition not satisfied with anyone. Okay, in that case, what we getting good day. It means what we are doing here, we are handling multiple condition. We having multiple condition, and we are handling those all conditions here. If no one got satisfied, in that case, we will get the output from the else part. Okay, let's print the output. So what happened? Time be getting here good morning. Why? Because time is 7 o'clock. Let's go with 12 o'clock. Let's say it's become good afternoon. Now let's go with suppose that 5. Okay, what will happen? Default good day. It means here we are handling multiple condition. I will comment this code. But same thing, whatever we are handling here, same thing we can handle with the help of switch case. Okay, so we will try the same execution with switch case. So in the case of switch statement, what we are doing, let me copy this.
So see, in this case, what is there? So you can see here, what is this? Just go with the just a simple statement, not much more complicated. So this is your syntax. So what is that? Switch statement. Inside the switch, we will pass some expression. Expression means some value, some condition, something will be, anything will be. Next, here we will pass case. Okay, case. What is this? X. It means whatever value is there in the expression, it will match with this X. If suppose, just consider X as a expression value. Suppose here we got X. Okay, so what will happen? This X will match to this case. It means whatever code be writing here, it will get executed. Okay, let it to be this break statement left for right now. So again, suppose here this not as a X, here this is as a Y. What will happen? It will match first this case statement X, this not matching. It will move to the case another one, that is Y. If it is matching, then okay. Otherwise, it will move to next. Let me delete this one. The same thing is there. Yeah. So what happened? It will compare X. If it got a matched, it will execute this block of code. If there is no block, okay, here whatever B will write after this, that will automatically consider as a block, but there will be no any block. Next, case Y, if this will matched, then this code will be executed. If nothing going to match, default will execute. So this is the simple syntax of which one? Switch statement. Let me correct here. Okay, so this is just a simple statement is there. Let me go to one code. So see what is written here. So what we written? There is let month equal to April. Any month value be giving. What was the simple syntax? What was in place of Y? What was previously? Expression. Correct. So this expression value will match with our condition. Where is that Y? Okay. So this expression, previously it was expression. Fine. Previously this was expression. What is the case? Here we passing case. So case is as a first value as a Jan. Okay. Case another one as a Feb. Another case as March. Like this type we have multiple case. After that we can write here break statement. What is the benefit of break? Break means it will stop if this condition got match. अगर आपने पास किया वैल्यू, अगर आपका कंडीशन यहाँ मैच कर गया तो क्या होगा? ये ब्रेक कर देगा और आपका नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए चेक नहीं करेगा। अगर आप ब्रेक नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और अगर जब तक ये मैच कर गया, जहां ये मैच करेगा उसके बाद का सब आउटपुट को आपको शो कर देगा। हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक को बाद में, पहले हम लोग स्विच को देखते हैं। तो स्विच में क्या है? यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वैल्यू पास है वो एक तरह से क्या हो रहा है? आपको वैल्यू वहां पे आ रहा है। लाइक यहाँ पे क्या है? जैन। ठीक है, हमने लिया केस हमारा फर्स्ट है जैन, नेक्स्ट हमने केस बनाया फेब, नेक्स्ट केस बनाया मार्च। ठीक है, और नेक्स्ट केस हमारा जो है एक हमने ले लिया डिफॉल्ट। आप इस स्टेप से मल्टीपल ले सकते हैं, मल्टीपल इन द सेंस 12 पूरे मंथ का यहाँ पे दे सकते हैं हर एक डेटा। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमारा वैल्यू क्या है? एक्सप्रेशन में क्या वेरिएबल का नाम हमारा है मंथ। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ एक्सप्रेशन हटाइए और यहाँ पे मंथ को पास कर दीजिए। अब अब इशू मतलब वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? स्विच के अंदर आएगा।
स्विच के अंदर जब आता है ये क्या करेगा, मंथ वेरिएबल को लाया, मंथ वेरिएबल में क्या आएगा, अभी फिलहाल में हमारा अप्रैल है, ये काम करता हूँ, अप्रैल हटाता हूँ एंड फेब को लाता हूँ। अब क्या होगा, हमारा केस स्टेटमेंट में क्या मिला, केस जैन, क्या मैचिंग है, तो किससे मैच करेगा, ये मंथ जो है इससे मैच करेगा इस जैन को। इट मीन्स आप एक चीज समझ सकते हैं क्या, मंथ इक्वल टू केस में आ गया, केस कहिए या केस वैल्यू कहिए, जो भी सब चलेगा। तो ये चीज को वो कंपेयर करेगा, अगर ये मैच किया इट मीन्स आपका आउटपुट आएगा, अगर नहीं मैच किया तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। चलिए चेक करते हैं। तो मंथ क्या है, फेब, ठीक है, स्विच के अंदर आ गया फेब, केस जैन मैचिंग किया नहीं, इट मीन्स ये आउटपुट नहीं आएगा। नेक्स्ट केस फेब मैच किया किससे, मंथ एंड केस मैचिंग हो गया, हमारा आउटपुट क्या आएगा, फेब। हम लोग चेक करते हैं, मान लीजिए कि सपोज ये भी नहीं आया, केस मार्च, क्या होगा, तो यहाँ जो स्विच के अंदर जो मंथ है इसको मैच कराएगा किससे, मार्च से, मैच नहीं किया, क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि यहाँ पे मंथ में वैल्यू क्या है, फेब है, ठीक है। फिर नीचे अगर कोई नहीं मैच किया तो ये जाएगा डिफॉल्ट पे और आपको आउटपुट प्रिंट करेगा। कुछ समझ में आया, चलिए इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं पहले। आउटपुट क्या आया, फेब, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मार्च ले लेते हैं, मार्च, चलिए सेव कीजिए, क्या दिया, मार्च। ये मार्च जो लिख रहा है वो एक्चुअली में क्या है, यहाँ जो हमने कंसोल लिखा है वो दे रहा है, प्रिंट कर रहा है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ तो हम लोग जस्ट अभी मार्च लिख दिए, बट यहाँ पे हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं, तो ऐसा इशू हमारे पास नहीं होगा, कोई इशू नहीं है इस चीज का, ठीक है। अगर सपोज दैट हमने गलती से क्या किया, जैन में मान लीजिए हमने जैन लिखा, बट यहाँ पे सपोज हम पूरा लिखने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी लिख दिए, कौन सा आएगा आउटपुट में, कौन सा केस मैच करेगा, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, इसको एक्सप्रेशन में डालना है, कौन सा केस मैच करेगा, हमारा अभी एक्सप्रेशन जो है JANUR है, कुछ कोई मैच करेगा, केस वन जैन मैच होगा नहीं, केस फेब नहीं, केस मार्च नहीं, तो क्या होगा आउटपुट, समझ में आ रहा है क्या सबको, डिफॉल्ट सर। डिफॉल्ट हो गई। तो ये जाएगा डिफॉल्ट पे और कंसोल डॉट लॉग में नो मंथ आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है, नो मंथ। तो समझ में आ गया, यही है स्विच का स्टेटमेंट आपको। ब्रेक क्या है, ब्रेक को छोड़ दीजिए, बाकी ब्रेक को छोड़कर हम लोग पहले पूरा को समझ लेते हैं। तो स्विच हम लोग लिख कैसे रहे हैं, ये क्लियर हुआ। तो स्विच में हम लोग किए क्या, हमारे पास सिंपल सा सेंटेंस हो रहा है, स्विच, ठीक है। और देखिए अगर आप नॉर्मली बना के चलते हैं तो स्विच हुआ, यहाँ पे की दिखा रहा है, की की जगह हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ वेरिएबल को पास करते थे, और यहाँ पे आपको केस होता था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं मान लीजिए लिख दिया मोहन, ठीक है, और ये जो वैल्यू लिख रहा है तो वैल्यू पास कीजिए, मोहन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, हेलो मोहन। फिर हम लोग डिफॉल्ट पे चलते हैं, ब्रेक नीचे रहेगा, उसके पहले सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, डिफॉल्ट कर दिया। चलिए इसको करते हैं तो क्या होगा, स्विच के अंदर क्या है, मोहन, केस सर्च करेगा, केस मिला इसे मोहन, अगर नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट आ जाएगा, तो आउटपुट क्या आया, हेलो मोहन, ठीक है। हम लोग इसको गलती कर देते हैं, अब कौन सा मैच करेगा, क्या आएगा आउटपुट, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि स्विच के अंदर जो वैल्यू है वो मैच नहीं कर रहा है किसी से। तो अब सोचिए यहाँ पर जो हम हार्ड कोडेड लिख रहे हैं, ये लिखना चीज तो सही नहीं है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, इसे हम कुछ वेरिएबल में पास कर दे रहे हैं। लाइक यहाँ पे हम बना रहे हैं लेट, और कुछ भी लिख देते हैं, वेरिएबल वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी हम लोग पास करेंगे, सपोज मोहन सोहन जो भी हो, अब यहाँ पे हम लोग उसको ले आएंगे,
करेक्ट। अब इसको रन कर दीजिए, हो गया। तो इसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसे वेरिएबल के हेल्प से उस वेरिएबल को हम लोग स्विच के अंदर पास कर दे रहे हैं, और वो वेरिएबल आपका क्या हो रहा है, वो मैचिंग करेगा दूसरे के साथ, जहां भी मैच किया आपको वो वर्क करेगा। तो एक बार चेक कीजिए एल्स इफ के कंडीशन के केस में और इसके कंडीशन में। एल्स इफ में क्या हो रहा था, एल्स इफ में भी तो यही काम हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल है, करेक्ट, और उसे हम वन बाई वन हर एक के साथ मैचिंग करा रहे हैं। अगर यहाँ मैच हो गया तो ठीक है, आउटपुट आएगा। यहाँ नहीं हुआ कोई इशू नहीं, सेकंड में जाकर मैच करेगा, आ गया आउटपुट, ठीक है, तो यहाँ दिया। अगर वहां भी नहीं आया, नेक्स्ट को मैच करेगा, कोई नहीं मैच किया तो एल्स के पास आया। यहाँ पर जो एल्स है स्विच स्टेटमेंट में, यहाँ पर क्या है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, देखिए लास्टली अगर आप एक बार ओवरव्यू देखिएगा तो सबका काम क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है। लेकिन जब आप कोड लिखिएगा तो आपको ये खुद लगेगा कि नहीं यहाँ पर हम स्विच को यूज कर लें ज्यादा बेहतर है, या फिर हम लाइक एल्स इफ है, जो भी हो उस टाइप से आप कर सकते हैं। तो उसका कोई झंझट नहीं है। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। तो ये था आपको स्विच स्टेटमेंट, सर, इसमें और कोई, हाँ बोलिए। तो व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ स्विच? और स्विच स्विच जैसे कि मतलब मैं, आपके पास, हाँ बोलिए। सर इफ इल्स तो समझ गया सर, बट स्विच तो कंडीशन समझ रहा, बट इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा सर। इसको क्या सर, हम जैसे ये सर जो केस बार बार आप केस कर रहे हैं फिर ब्रेक कर रहे हैं, इसको हम फंक्शन की तरह नहीं कर सकते क्या, चैन वाइज बना के? ये चेन नहीं है मतलब ना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो चेन तो नहीं है ये। यहाँ पर क्या है, ये जो केस देख रहे हैं ये एक्चुअली में केस का मतलब क्या हो रहा है, एल शिप में जाइए, केस कहाँ पर है, एल शिप में जो लिखा हुआ है कहीं पे दिख रहा है, वो केस जो नीचे लिखे हैं वो चीज यहाँ पर कहीं भी, कहाँ पर दिख रहा है, कहीं नहीं है। 11 नंबर। 11 नंबर, ये जो इफ के अंदर जो ये हम कंडीशन पास किए वो है क्या, एक तरह से वो केस ही है ना। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्या चीज, जैन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जैन जैन ना लिख दें सपोज, ओके इसको मुझे कमेंट कर दीजिए वरना ये एरर दे देगा। चलिए इस एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर लिखता हूँ दूसरे एग्जाम्पल पे। सो मैंने ले लिया एंटर वैल्यू, ठीक है, यूजर से वैल्यू लिया जाएगा और यहाँ पे उस वैल्यू को हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूजर से वैल्यू लेंगे और इसके पास मिलेगा वो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इनपुट वैल्यू आएगा, हमें नहीं मालूम कि क्या आएगा, हम क्या काम करते हैं, लेकिन हम यूजर से इनपुट जो लेंगे ना, यूजर से वो नंबर ही लेंगे, तो हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लस हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिखाकर चलना है कि अगर ये इक्वल टू अगर होता है इनपुट वैल्यू, या ग्रेटर देन, मुझे ग्रेटर देन की कंडीशन पर लेकर चलना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यूजर ने डाला 5, ठीक है, मुझे यहाँ दिखाना है कि नंबर जो है 5 जितना वो इंटर कर रहा है 5 से बड़ा है या छोटा है, कुछ इस टाइप का कंडीशन को, तो कैसे यहाँ केस में हम जनरेट करेंगे, मुझे दिखाना है कि इनपुट वैल्यू जो यूजर पास कर रहा है दैट, कि यूजर ने मान लीजिए 5 दिया या 10 दे दिया, मुझे कंडीशन लेकर चलना है कि नंबर ये 10 से बड़ा हो तो ये कंडीशन, छोटा हो तब अनदर कंडीशन। कैसे लिखेंगे केस में, तो कंडीशन तो यही लिखेंगे ना, मान लीजिए ये यूजर का वैल्यू और ग्रेटर देन 5, लेकिन ये जो 10 है ये कहाँ से आ रहा है, तो यूजर से आ रहा है, तो हम इसको इनपुट वैल्यू में डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे हो गया इनपुट वैल्यू ग्रेटर देन 5। अगर ये ग्रेटर देन 5 होता है तो कंसोल क्या कर रहे हैं, ये हो गया,
क्या लगता है वर्क करेगा क्या? पता नहीं, हाँ सर। देखिए, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं। क्या दिया? डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि 10 ग्रेटर देन 5, 5 से तो बड़ा है। क्या हुआ होगा इशू? एक सेकेंड, इक्वल टू डाल देता हूँ। चलिए अब 5 डालता हूँ। क्या दिया? डिफॉल्ट, मतलब ये वर्क नहीं किया। तो इनपुट वैल्यू यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ हमने केस मैचिंग कराया, ग्रेटर इक्वल टू 5। चलिए एक काम करते हैं, डिबग करते हैं कोड को, देखते हैं डिबग पे। स्विच, सॉरी इसको कर दिया। चलिए रन कर देते हैं। पहले हम लेते हैं इक्वल टू वाला वैल्यू 5, ठीक है। स्विच में क्या हुआ? 5 आया, ठीक है। ये यहाँ पे डायरेक्ट इसे, तो ये रहा 5, 5 ग्रेटर इक्वल टू 5। देखिए कंडीशन क्या दिया? ट्रू। तो जब ये ट्रू दे रहा है तो इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, नहीं किया। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं लेता है क्या? लेना चाहिए। सर ब्रेक किए हैं उसकी वजह से कुछ इश्यू। नहीं नहीं, ब्रेक के वजह से नहीं। ओके, सर उसमें जो केस में जो आप वैल्यू दे रहे हैं ना, वो इनपुट ग्रेटर देन 5, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यही मुझे लग रहा है। इसको विद इन ब्रैकेट डाल देता हूँ। केस कॉलोन कर करके दीजिए सर, केस केस कॉलम तो कॉलोन। बाहर, नहीं कॉलम तो कॉलोन बाहर नहीं गया। नहीं, केस के बाद कॉलोन दीजिए, केस के बाद कॉलोन दे करके उसको करिए। यहाँ पर वैसे नहीं हाँ लिख, वैसे नहीं लिख वैसे सकते हैं ना। चलिए देखते हैं ट्राई करके, जो हुआ तो ठीक है। पहले इसको बंद कर दें। बैटरी 46%। बंद हो जाएगा। जहाँ तक लग रहा है कि वो अंदर वैल्यू नहीं लेगा। म्यूट कीजिए। यहाँ पे वैल्यू आ गया नहीं। ये 10 तो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन भी ट्रू है। यहाँ पे शायद बूलियन नहीं डालते हैं क्या? मुझे लग रहा है एग्जैक्ट मैचिंग वाला ही जाता है इसमें शायद। तो ये तो ब्रेक स्टेटमेंट को चलते हैं इस पे। मुझे लग रहा है एग्जैक्ट मैचिंग जो करेगा ना, उसका ही वैल्यू रहेगा इसमें। लेकिन बुलियन भी शायद लेते हैं। ये हो गया, चलिए रन कराते हैं। सो मंथ, ओके, तो मंथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, स्विच किया फर्स्ट केस को इसने, ओके। इसने पहले ही मैच करा लिया कि वो वैल्यू इसी से मैच कर रहा है या नहीं। तो कोई भी केस मतलब वो 1 बाई 1 जाकर वो चेक नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, केस के अंदर तो नहीं डाल सकते हैं, नहीं, ठीक है। वो डायरेक्ट कहाँ पे जंप किया? नो मंथ में, क्योंकि कोई भी केस जो है वो मैचिंग कर ही नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे डायरेक्ट हम डालेंगे तभी जाकर वर्क करेगा बुलियन। लेकिन डालने का तरीका है कुछ, देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसको जब आएगा वैसा सिनारियो ना,
तब उसको देखा जाएगा, कोई इशू नहीं। इसको हटा दीजिए। इसे सिंपल ये कर सकते हैं, यहाँ पे हमने मान लीजिए 5 डाल दिया, तो अगर ये इनपुट वैल्यू जो भी हम पास कर रहे हैं अगर वो 5 है सपोज, तो फिर क्या होगा, वो ये कंडीशन आ जाएगा, अगर नहीं है तो नीचे जाएगा। और इस टाइप से हम मल्टीपल कंडीशन को बना सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा कि यहाँ बुलियन कैसे हम पास करके कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर होगा या स्विच का सर एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। फ्लो चार्ट मतलब? फ्लो चार्ट की इस पे कैसे काम करता है स्विच स्टेटमेंट, मतलब कि एक्सप्रेशन दिए तो वो मैच किया एक से, तो उसके बाद वो क्या हुआ कि वो उसका जो रिजल्ट देगा, फिर अगर नहीं वही होता तो, तो फिर हाँ। तभी वही तो बताया। जी जी। जैसे ये गया, फिर ये स्विच के अंदर एंट्री किया, ये वैल्यू जो भी रहा उसको वो मैचिंग कराते जाएगा, केस बाई केस। तो फर्स्ट केस को उसने मैच कराया कि मंथ है ये वैल्यू एंड ये वैल्यू। वेट वेट वेट, सॉरी, सर बोलिए। सर हम लोग को सर अब नंबर चाहिए, तो सर कंसोल में हेलो मोहन डालें। क्या कह रहे हैं? मतलब सर हम लोग को चाहिए ना सर कि ग्रेटर देन 10 से बड़ा, 5 से बड़ा है 10, हम्म। तो नहीं वहां सर पे सही। सर ग्रेटर देन, क्या क्या नहीं समझा, ग्रेटर देन? मतलब मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है सर, मतलब कि वहाँ पे केस के केस में सर हम हाँ वो इनपुट वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू वो 10 लिखते हैं, फिर कंसोल में सर ग्रेटर देन 10 करते तो मे बी आ सकता हो या नहीं। भाई कंसोल से थोड़ी मतलब है, कंसोल तो जो लिखेंगे वो देगा, उसे तो सीन ही नहीं है कुछ। जो चीज है वो यहाँ पर है ना, कंसोल का कोई सीन नहीं है। कंसोल क्या है, वो तो आउटपुट का तरीका है, उसमें कुछ नहीं है। केस में ही सर डाल देना इनपुट वैल्यू ग्रेटर देन 10। यहाँ पे ना इनपुट वैल्यू बोलिए ग्रेटर देन 10, ऐसा क्या? ग्रेटर के बाद देखते हैं। इक्वल टू। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, वो दोनों चीज मैच कराएगा अपना। तो ग्रेटर इक्वल टू 10, तो पहले तो मैं शायद यही लिखा था। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 पास करते हैं, डिफॉल्ट दिया ग्रेटर देन 10, तो इनपुट वैल्यू जो है क्या है, 10 से बड़ा है या 10 है? ठीक है, 11 डालते हैं, तो भी डिफॉल्ट दिया। नहीं, वो कुछ की दिक्कत कर रहा है वहाँ पे, इसलिए। ठीक है, इसको एक बार चेक कीजिएगा कि कैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये कोड डालता हूँ चैट में। इसको देखेंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, यहाँ हमारे पास जो वेरिएबल हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, उस एक्सप्रेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके अंदर, स्विच के अंदर। एक्चुअली हो क्या रहा है, वेरिएबल जो यहाँ पे वैल्यू है हमारा है वो वैल्यू, एंड जो केस के अंदर जो है वैल्यू है वो, दोनों को मैचिंग कराया जा रहा है। मीन्स ये बन रहा है वेरिएबल इक्वल टू किसके, यहाँ जो वैल्यू है उसके। कुछ ये सीन हो रहा है दोनों में, समझ गए? अगर ये सेटिस्फाइड हुआ तभी ये क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है। मीन्स स्विच स्टेटमेंट एंड यहाँ पे जो वैल्यू है। तो देखिए इसका करके देखिएगा कैसे, जो बताता हूँ, मुझे जहां तक लग रहा है कि उस पर वर्क करना चाहिए इस टाइप से। इट मीन्स जो केस है, तो केस के अंदर हम लोग ये पास किए ना, तो इनपुट वैल्यू तो ऑलरेडी ऊपर है, तो वेरिएबल वैल्यू जो हमारा ऊपर से था, और इक्वल टू जो मोहन हम लोग पास कर रहे थे,
तो यहाँ पे केस के पास यहाँ पे ये इनपुट वैल्यू मुझे नहीं लगता है कि आएगा, कुछ उस टाइप से मॉडिफाई करना होगा, या हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं लेगा, स्ट्रिंग के अंदर बनाएंगे तो दिक्कत कर देगा। तो कुछ इस टाइप से होगा तब जाकर वो वर्क करेगा। एक और ट्राई कीजिएगा, होता है तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे उसके बाद में हम लोग। ठीक है, तो ये था आपको स्विच में। स्विच में हम लोग कर रहे हैं क्या, मल्टीपल कंडीशन को हम वेरीफाई कर रहे हैं। हमारा जो कंडीशन वेरीफाई हो जाएगा, मैच हो जाएगा, हम लोग उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्विच समझ में आ गया या कोई दिक्कत? ये था बेसिक कंप्लीटली, जिसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखने गए कि क्या है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपको यहाँ मिलेगा देखने को। अब एक काम करते हैं वेट, अब जाता हूँ ऊपर, सबसे ऊपर इसको। अब देखिए, तो स्विच का होता है कैसे, एक्सप्रेशन हुआ और केस हुआ, और केस के नीचे आपका कोड ब्लॉक हो गया जो एग्जीक्यूट करेगा, लाइक केस वाई, केस एक्स वाई जेड जो भी हो। तो स्विच ऐसे एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस, एक बार ये क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस, जो वैल्यू एक्सप्रेशन में होगा। ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, हर एक केस से कंपेयर किया जाएगा वैल्यू को। and if there is a match, the associated block of code is executed. If there is no match, the default code block is executed. अगर कोई मैच नहीं करेगा, डिफॉल्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही आपका था केस स्टेटमेंट, और ये कुछ नहीं है। फिर ये ब्रेक है, कंटिन्यू है, ये सब दो अलग कीवर्ड है, बट यही आपका सेम जो हम लोग अभी डिस्कस किए, ये स्विच का स्टेटमेंट होता है, और इसमें कुछ नया नहीं है। अब जो भी है सब एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल को मैं यहीं पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ना, इस पे लेकर चलूंगा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मुझे कॉपी करने दीजिए एग्जाम्पल को। देखिए, तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ऑलरेडी हमें पता है हम लोग यूजर से लेते हैं क्या चीज, मंथ नेम। यूजर क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा मंथ का नेम। ठीक है, वेट, मुझे HTML के साथ लिंक करने दीजिए फाइल को। ठीक है, तो यहाँ क्या किए, हम लोग यूजर से ले रहे हैं मंथ का नेम। अब जो भी वो मंथ दे रहा है, ठीक है, हम उससे मैचिंग करा रहे हैं। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी एग्जांपल देख चुके हैं, बट अब यहाँ पर हम लोग यूजर से जो मंथ ले रहे थे वो नहीं लेंगे। हम लोग इसको क्या करते हैं, कुछ एरे के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉम्प्ट का मेथड को ऑलरेडी देख लिए कि यूजर प्रॉम्प्ट दे रहा है और उसका वैल्यू हम लोग पास कर रहे थे, हमारा आउटपुट आ रहा था। हम लोग उसी चीज को दूसरे ढंग से करते हैं। मीन्स ये तो हुआ है आपको टेम्पोररी बेसिस। सपोज दैट आपके डेटाबेस में कुछ डेटा है, ठीक है, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, किन्हीं को पता है ये क्या है? किन्हीं को पता है? अरे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ओके, और कोई? तो ये है एरे। ठीक है, अभी हम लोग एरे नहीं पढ़े हैं, हम लोग आगे देखेंगे। बट जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, छोटा सा चीज है, नॉर्मल नॉर्मल, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो एरे बन जाता है हमारा। एरे स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे आप लिख दीजिएगा, ये आपका एरे बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एरे, एरे है।
मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है स्विच स्टेटमेंट। तो एक काम करते हैं, तो पहले लिखिए स्विच का फॉर्मेट बनाइए। पहले स्विच का फॉर्मेट ये रहा। यहाँ पे क्या है की, यहाँ पे क्या चीज आता था की के केस में, वेरिएबल का नाम आता था जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखते थे। हमारा पूरा डेटा किसके पास है, मंथ नेम के पास। ठीक है, हम लोग उसका सारा डेटा को ले आए, ये हो गया। अब आते हैं वैल्यू। ये वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या चीज होना चाहिए, जैन कुछ इस टाइप का ना। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं पहले, जैन। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं, ये तो हुआ एक स्टेटमेंट। हम लोग लेते हैं दूसरा केस। ठीक है, और यहाँ पे दिए फेव कंसोल डॉट लॉग करते हैं, यहाँ दीजिए फेव, और इसके बाद अब लगा दीजिए ब्रेक। ब्रेक क्यों लगा रहे हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, जैन हो गया, नेक्स्ट आपको हो गया फेव, नेक्स्ट हमने किया डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट के बाद कंसोल लिख देते हैं। DEFAU। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, जब यूजर से, यूजर नहीं सॉरी, यहाँ पर मंथ, अगर ये डेटा सपोज दैट कि फर्स्ट को मैच किया, अगर ये जैन मिल गया, नहीं तो क्या होगा, फेब मिलेगा, अगर कुछ नहीं मिला डिफॉल्ट मिलेगा। तो जब जो मैचिंग किया उसका वो कंसोल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज, क्या यहाँ जो हम लोग जैन लिखे हैं और यहाँ जो डेटा हमारा आ रहा है वो क्या है, एरे है। ठीक है, तो एरे से जो डेटा आ रहा है, क्या ये डेटा हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है या नहीं। तो सबसे मेन चीज क्या होगा, हमें लाना होगा इस एरे से वो इस डेटा को, मतलब यहाँ जो डेटा आपका आ रहा है ये डेटा हमें फेच कराना होगा। तो एरे से जो डेटा आता है वो डायरेक्ट नहीं आता है, वो एरे से जो डेटा निकालेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पर अगर हमने जीरो लिख दिया तो ये क्या करेगा, ये जीरोथ इंडेक्स, इसको इंडेक्स में बोलते हैं यहाँ पर। तो पहले जो हम लोग जब एरे पढ़ेंगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए बस समझ के चलिए, ये फर्स्ट जो नंबर है ये जीरोथ नंबर पे है, सेकंड जो है वो 1 है, फिर आपको वो 2 है, 3 है, 4 है, कुछ इस टाइप से चलता है। जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अगर आपको यहाँ से फर्स्ट वाला वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, एरे का जो सिंबल है उसी में जीरो लिखना पड़ेगा, तब आपको जीरो नंबर का डेटा मिलेगा। अगर आपने 1 लिखा तो 1 नंबर का डेटा मिलेगा। मैं इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ। ठीक है, और एरे के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, चेक करते हैं कि क्या ये जैन दे रहा है या नहीं। कीजिए पहले, क्या दिया, जीरो, क्यों, इसको ओपन कीजिए जरा, नहीं वेट, ओ सॉरी, मैंने तो यहाँ जीरो लिख दिया। तो ये हमें पहले एरे लिखना होगा पूरा, मंथ नेम, इसके बाद देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट और तब लगाना होगा जीरो। और अब आप डेटा लिखिए, तो क्या दिया, जीरोथ नंबर पे जैन है। ठीक है, फिर 1 नंबर पे हम चेक करते हैं, क्या दिया, फेब। फिर आप 2 पे चेक कीजिए, क्या दे रहा है, मार्च। तो इस टाइप से सीक्वेंस जाएगा। सपोज दैट हमने एक चेक कर दिया 8 पे, कोई डेटा है, डेटा नहीं है, डेटा नहीं है इन द सेंस हमें अनडिफाइंड मिला। एक चीज तो हम समझ गए, क्या, कि मंथ नेम और जीरो हम जब पास करेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट डेटा, मंथ नेम 1 देंगे तो हमें मिलेगा सेकंड डेटा। क्या चीज, किसके कारण, क्योंकि ये क्या है, एरे है। मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे अब चेक करना है। चेक कैसे करना है, तो पहला केस यहाँ पे हमें कंपेयर ये कराना है कि जैन है या नहीं। तो हम लोग ने क्या किया, हार्ड कोडेड करके जैन लिख दिया। क्या लगता है आउटपुट आएगा, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कोई आइडिया। ये जो अभी आप जैन फैब देख रहे हैं ऐसा सीन नहीं है, ये मतलब आपके डेटाबेस में यूजर का रिकॉर्ड है। सपोज आप लॉगिन करने जा रहे हैं, ठीक है, किसी वेबसाइट पे, तो लॉगिन करने के लिए जब आप जा रहे हैं तो वहां पे तो मल्टीपल यूजर रजिस्टर्ड रहेगा, करोड़ों यूजर रजिस्टर्ड हैं। तो आपका डेटा वो कैसे फेच किया, कुछ तो कारण होगा, किसी तरह से आप फेच करा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे मान लीजिए रामू है,
मोहन, सोहन, श्याम, राधा, इस टाइप से। तो मान लीजिए कि सपोज दैट जो यूजर लॉगिन करने जा रहा है वो हो सकता है कि रामू है, ठीक है, या हो सकता है मोहन, सोहन, कोई भी हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो केस को मैचिंग कराना होगा ना कि हाँ ये यूजर कौन है, मोहन है। सपोज दैट ये रामू को हम लोग लेकर चलते हैं, ये रामू रहा, तो रामू लॉग्ड इन। तो ऐसा हमें दिखाना है सपोज दैट। तो कैसे ये दिखेगा कि रामू ने लॉग्ड इन किया या मोहन ने किया या किसने किया। सर केस में वहाँ पे रामू लिखेंगे अगर रामू को कराना है तो। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, केस में लिखेंगे रामू, बट रामू लिखने से नहीं होगा ना। ओके ठीक है, चलिए केस में हम रख देते हैं रामू को। बट क्या यहाँ पर रामू आ रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, ये जो हम लोग केस में मैचिंग करा रहे हैं ये किससे मैचिंग करा रहे हैं। यहाँ जो केस में हम रामू लिखते हैं वो किसके साथ मैच करता है। सिर्फ फर्स्ट टाइम जो एंटर कर रहा था उसको। अरे के साथ नहीं, पीछे वाला कोड याद है कैसे कर रहे थे, वेरिएबल इक्वल टू मोहन है तो वेरिएबल इक्वल टू केस, यही हो रहा था ना, वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल के साथ कंपेयर कर रहा है। इक्वल टू केस का वैल्यू, करेक्ट। तो अब यहाँ वेरिएबल कौन है, यहाँ वेरिएबल मोहन है, बट सपोज दैट हम मोहन को छोड़ देते हैं, ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं मोहन, सॉरी मंथ नेम, मंथ नेम हमारा वेरिएबल हुआ और मैच किसके साथ करा रहे हैं, केस का वैल्यू। तो मंथ नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, केस वैल्यू, ये होगा तब मैच करेगा ना, समझ में आ रहा है। अगर ये वेरिएबल नेम जो भी है और यहाँ पे केस वैल्यू दोनों जब मैच करेगा तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। मंथ नेम, मंथ नेम ये रहा। अब हमें ये चेक करना है कि मंथ नेम दे क्या रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें वो नहीं मालूम, तो पहले हम चेक करते हैं कि मंथ नेम में आ क्या रहा है, कुछ आ रहा है क्या। मंथ नेम और यहाँ नहीं लिख सकते हैं, हम जब भी लिखेंगे बाहर में ही लिखना होगा हमें, ठीक है। मंथ नेम से हमें वैल्यू मिल कैसे रहा था, अगर सपोज हमें रामू चाहिए तो कैसे मिलता है, एरे से क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, एरे का सिंबल में जीरो, तो क्या देगा, इसका आउटपुट क्या होगा, रामू होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर जब हम मंथ नेम जीरो देंगे तो हमें रामू देगा, मंथ नेम अगर हम 1 कर देंगे तो मोहन आएगा, फिर 2 करेंगे सोहन आएगा। तो इस टाइप से हमें ये वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, ये रामू कब मैच करेगा आपके वेरिएबल से, जब उसको इस टाइप से वैल्यू कुछ मिला हुआ रहेगा, 0 1 2 3 कुछ भी, तभी मैच करेगा ना। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ जो हम रामू लिख रहे हैं यहाँ रामू न रहेगा और क्या रहेगा, या क्या लिखना चाहिए, जीरो लिखना चाहिए। जीरो अगर हम लिख दें तो हमें मैच करा के वैल्यू दे देगा ना। अगर हमने जीरो लिख दिया ये क्या मिला, जीरो जो हम लिख दिए ये मिला क्या, ये मिला एरे का फर्स्ट रामू, वैल्यू मिला सर। क्या मिला, एरे का फर्स्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सेम चीज हम लोग चलते हैं अब इस पे करने के लिए, और इसको 1 कर देते हैं तो क्या होगा, सेकंड वैल्यू मिल जाएगा। फिर 2 कर देते हैं, कौन है, सोहन, ठीक है। सोहन लॉग्ड इन, थर्ड में क्या था,
डिफॉल्ट ले लेते हैं। हम लोग अभी ब्रेक को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट को। ब्रेक को बाद में देखा जाएगा। अभी क्या हुआ, 0 1 2 डिफॉल्ट, ठीक है। जब 0 मैच करेगा तो आपका ये वैल्यू मैचिंग होगा। फिर जब ये मैचिंग करेगा ये देगा। अब एक चीज सोचिए, चलिए हमने यहाँ 0 दे दिया, अब इसको रिप्लेस करते हैं। मंथ नेम क्या वैल्यू है यहाँ पे, कुछ है क्या? मंथ नेम में क्या वैल्यू आ रहा है, कोई आइडिया? एरे वैल्यू आएगा, लेकिन उसके लिए वहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा ना। जीरो के रिप्लेस पे ये पूरा का पूरा ये वैल्यू आ जाएगा मंथ नेम के केस में, मीन्स लाइन नंबर 10 में। जीरो के करेक्ट या नहीं? प्लेस क्या कह रहे हैं? यहाँ पर स्विच में जो मंथ नेम है, यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा एरे ही आएगा। मैंने यहाँ, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मंथ नेम, ठीक है। अब इसको सेव कीजिए और लाइन नंबर 5 का आउटपुट देखिए। पूरा ही आएगा सर। ये क्या हुआ, ये पूरा हमें एरे दे दिया। हमारा कंडीशन क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये मंथ का नेम वैल्यू और यहाँ का केस का वैल्यू दोनों मैच करना चाहिए। यही रहता है ना स्विच कंडीशन। ये समझ में आया? स्विच कंडीशन में वर्क कैसे करता है, मंथ नेम इक्वल टू केस वैल्यू। मंथ नेम क्या है, पूरा एरे है, और यहाँ मंथ नेम 0 पर क्या है, मंथ नेम जो हम लोग लिख दिए हैं ये 0 पे क्या है, रामू। रामू। तो होना क्या चाहिए, मंथ नेम यहाँ लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे आया आपको रामू, और यहाँ पे जाएगा इक्वल टू किससे, केस वैल्यू। केस वैल्यू मतलब कौन सा, सॉरी केस वैल्यू में ये जाएगा ना, केस, ये मंथ नेम, मंथ नेम में क्या है अभी फिलहाल हमारे पास ये पूरा एरे ही है। करेक्ट, ये आप यहाँ देख रहे हैं ये पूरा डेटा आ गया। मतलब यहाँ पर जो ये डेटा है ये पूरा का पूरा अभी फिलहाल हमें मंथ नेम में है, और इक्वल टू हम करा रहे हैं राहुल। क्या ये कंडीशन इक्वल है? नहीं है इक्वल, क्योंकि अगर यहाँ रामू है तो इधर भी तो रामू होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने यहाँ मंथ नेम डाल दिया तो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मंथ नेम अगर हम लोग फिर इसी से लेते हैं तो कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या करेंगे, उस चीज को हम लेते हैं यूजर से, ठीक है। और यूजर से लेगा, हम लेते हैं यूजर नेम, ठीक है। और इस यूजर नेम को पास करते हैं यहाँ। अब क्या होगा, आप सोचिए कंडीशन बताइए, वर्क क्या कर रहा है ये, मयूरी इसको एक्सप्लेन कीजिए ये कैसे वर्क करेगा, ये दोनों लाइन। सर फर्स्ट केस में 0th नंबर पे जो रामू है वो आउटपुट देगा, और ये स्विच में यूजर नेम क्या लेगा, वो प्रॉम्प्ट के लिए वो प्रॉम्प्ट में स्विच करेगा उसको। अच्छे समझाइए, नहीं समझा पूरा, मतलब फ्लो क्या होगा, स्टार्टिंग से फ्लो बताइए। बोले सर, बोलिए। जैसे कि यूज़र में हम यूआई से मार देंगे रामू, तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर 10 में ये रामू को लेगा, और केस 1 में जो मंथ 0 पे रामू को मैच कर लेगा, और क्या कर देगा, रामू को प्रिंट कर देगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो प्रॉम्प्ट में वैल्यू देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को ये लेके आ जाएगा किस में, स्विच के अंदर यूजर नेम में। जो भी वैल्यू दिए यहाँ आ गया, फिर ये केस में जाएगा और यहाँ वैल्यू से मैच करवाना है। और ये वैल्यू कहाँ पर अवेलेबल है, तो आपके डेटाबेस में, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास स्टोर्ड है
और आप इस वैल्यू से कंपेयर करने जा रहे हैं केस स्टेटमेंट को, करेक्ट। तो केस 0 पे क्या है, रामू, एंड यूजर ने जो वैल्यू एंटर किया हो सकता है उसने रामू ही एंटर कर दिया। तो जब ये रामू एंटर किया और यहाँ पे 0 नंबर पे हमें रामू है, मतलब क्या हुआ, ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। समझ में आ गया सबको? सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ हमने दिया मोहन, तो वो क्या करेगा, 0, अगर वो चेक करेगा 0 पे रामू है, ठीक है, ये फेल हो गया। नेक्स्ट 1 पे मोहन है, ठीक है, ये लॉगिन हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो पहले हम लोग पास करते हैं रामू, क्या दिखाया, रामू लॉग्ड इन आ गया, मतलब कंडीशन हमारा मैच कर गया। अब हम लोग देते हैं दूसरा नेम मोहन, ठीक है, क्या दिया, नो वन, कुछ गड़बड़ हुआ, 0 1, ओके, ये स्मॉल लेटर है, कैपिटल और स्मॉल का इशू हो जाएगा। ठीक है, मोहन क्या दिया, मोहन लॉग्ड इन, लेकिन जैसे ही अगर वो मैच नहीं करेगा आपका आउटपुट नहीं देगा। तो एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का इशू, तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे जो मोहन लिखा हुआ है ये स्मॉल में लिखा हुआ है और यूजर ने गलती से क्या किया, कैपिटल में लिख दिया, तो हम उसको कैसे सही करवाएंगे, मतलब वो किसी भी लेटर में लिखे, हमें नहीं मतलब है, कैसे करेंगे उसको। सबको लोअर केस में देना पड़ेगा। हम लोग सर एक पिछले दिन एक मेथड पढ़े थे, एक मेथड था हमारा, क्या जी था, लोअर केस अपर केस, कुछ भी, लोअर मतलब हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब जो भी हम ट्रांसफर करें हमारा डेटाबेस में जो वैल्यू है इसको कंपेयर करवा लेना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो यूजर से जो वैल्यू आ रहा है इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, लेट यूजर कन्वर्टेड, ऐसा लिख दिए, इक्वल टू, ठीक है, और क्या चीज, यूजर नेम डॉट क्या चीज, टू लोअर या अपर, कुछ भी ले लीजिए चलेगा। तो अब हमें ये मतलब ही नहीं है कि आइदर यूजर ने लोअर दिया या अपर दिया, उससे नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारा अब जो आएगा यूजर से वो लोअर में ले लेंगे। और मान लीजिए देखिए, अब हम यूजर से जो डेटाबेस में इंटर किया हुआ है इसको भी हम ये नहीं कह सकते हैं यूजर को कि नहीं आप जो डेटा इंटर किए हैं वो लोअर में कर दीजिए या अपर में कर दीजिए, तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस डेटा को भी हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं, नहीं तो डेटा को मैनुअली, मतलब मैनुअली हम सारे को लोअर में कर देंगे। एक बार यहाँ पे मैं चेक करके देखता हूँ होता है क्या, रामू में एरर आएगा। लोअर नहीं, कहीं नहीं आएगा। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ डेटाबेस में भी मैं यहाँ पे लोअर में कर दे रहा हूँ, मतलब हम एक सिंपल कोड लगा के हमारे डेटाबेस में कौन सा वैल्यू है हमें नहीं मतलब है। ठीक है, एक लाइन लगाकर हम लोग पूरा को कन्वर्ट कर दिए, मतलब ये जो एरे का डेटा है उसको भी हमने मैनुअली यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया टू लोअर केस में, यूजर से जो इनपुट आया उसको भी मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब दोनों अब हमारा वैल्यू जो आएगा वो लोअर में ही आएगा। अब हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कैपिटल लेटर में, रामू नो वन, कुछ गड़बड़ हुआ, अरे एम यू कहीं पे ब्रेक कर रहा है, देखते हैं, अरे एम यू ओके, लगता है वो वर्क नहीं किया क्या, यहाँ पे क्या इशू दे रहा है, मेथड लोअर केस, तो इस केस में मुझे क्या लग रहा है हमें सेपरेटली इसको करना पड़ेगा। सर वहाँ रामू कैपिटल से स्टार्ट एरे में से। उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कैपिटल है तो हम यहाँ तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, लिखा हुआ है टू लोकल लोअर केस, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, अपर केस, ये होगा ना, ये लोकल क्या आ गया था, अरे एम यू, चलिए सही है, हम लोग गलती लिख दिए थे थोड़ा सा।
चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये हम बोल रहे थे ना, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, अब हम इसको जैसे तैसे करके डेटा डाल देते हैं। हमें नहीं मतलब है कि यूजर ने क्या करके डाला है, किस टाइप से डाला डेटा, हम नहीं जान रहे हैं। उसका पूरा डेटा हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग जो एंट्री करेंगे डेटा, उसको लोअर केस में करेंगे एंट्री। फिर देखते हैं। चलिए ये हुआ RAMU, हमारा डेटा जो है कैपिटल में है, ठीक है। चेक करते हैं, मैच किया, मैच नहीं किया, फिर कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक सेकेंड, टू लोअर केस फाइन। अच्छा ये ब्रेक किस में कर रहा है, एक सेकेंड रुकिए था। RAMU, ओके ये तो ठीक है। RAMU, ओके, कैपिटल के केस में ये वर्क नहीं किया, क्यों? सर आपने जो 2 वेरिएबल लिए है यूजर कन्वर्टेड, फिर हाँ, वो मैच नहीं करेगा ना। कौन सा? किसी का अपन वहाँ पे लिखा यूजर नेम और वहाँ ओके पे ओके यूजर ओके, कन्वर्टेड, करेक्ट करेक्ट, तो यूजर कन्वर्टेड इक्वल्स टू यूजर नेम, ऐसा नहीं चलेगा ना? हो गया हो गया हो गया। वो मुझे, मैं शुरू में ध्यान नहीं दिया उसको, वही मैं मेरा ब्रेक कर रहा था। चलिए अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। हो गया। अब हम लोग पूरा कैल लोअर में डालते हैं। RAMU, सही है। मीन्स अब हमारा डेटा किसी भी फॉर्म में हो, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, मैन्युअली उसे वो कन्वर्ट कर देगा। एक काम और करते हैं, क्या यहाँ पर हम लोग क्या किए, हम लोग ने हार्ड कोडेड कर दिया ना, रामू लॉग्ड इन। हम लोग यहाँ हार्ड कोडेड नहीं करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर एक नॉर्मल सा फॉर्मेट हम बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी यूजर यहाँ लॉगिन कर रहा है, वो हमें पता चलना चाहिए कि किसने लॉगिन किया, ठीक है। कैसे लाएंगे, मीन्स यहाँ पर हम वेरिएबल को पास करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? कि जो प्रॉम्प्ट का वैल्यू है उसको लेना चाहते हैं। किसी का भी, हाँ मतलब प्रॉम्प्ट का ही समझ लीजिए। हाँ प्रॉम्प्ट का ही, तो उसमें $साइन दे करके, और आप यूजर कन्वर्टेड, नहीं सर, डॉलर, हाँ हो गया। यस, और उसके बीच में उस वैल्यू को लेंगे। क्या गलती है इस लाइन में, जल्दी बताइए। बैकटिक सिंबल्स। बैकटिक सिंबल छूट गया ना। ठीक है, अब क्या हुआ, यूजर कन्वर्टेड लॉग्ड इन, मतलब किस यूजर ने किया हमें नहीं मतलब है, कौन सा कंडीशन मैच किया हमें ये भी नहीं मालूम। हमारा अब क्या हो रहा है, सिर्फ हम लोग कंडीशन पास कर दे रहे हैं बस। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी क्या किए, अभी यूजर इसको हटा दूं, ये समझ में आ गया सबको, ये लाइन। चलिए इसको हटाता हूँ, इसको कोई झंझट नहीं है। ये भी हटा देता हूँ, इसका भी कंसोल का हम लोग समझ गए कि कैसे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे यूजर कन्वर्टेड में वैल्यू आएगा कहाँ से, तो जो लोअर केस में कन्वर्ट किया गया वहां से यूजर कन्वर्टेड, और मंथ नेम जो हमारा डेटाबेस से जो वैल्यू आ रहा है, इसको लॉग जब कंपेयर कर रहा है, दोनों को कंपेयर करने के बाद ये देगा कि कौन सा यूजर लॉग्ड इन हुआ है। चलिए अब चेक करते हैं, हम लोग कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ भी डालते हैं। RAMU, रामू डाल दिए, वेट, क्या दिया, रामू लॉग्ड इन। हमने जो लेटर लिखा वो किस फॉर्मेट में लिखा, कैपिटल या स्मॉल, वो ध्यान दीजिए। MOHAN, मोहन। चलिए इसको हटाइए, कैपिटल लिख देता हूँ, MOHAN। हम लोग दोनों मिक्स कर दिए हैं कंप्लीटली, अपर केस लोअर केस सब हमारा मिक्स्ड है। देखते हैं वर्क करता है क्या। क्या दिया, मोहन लॉग्ड इन। और हम लोग जो मिक्स करके लिख रहे हैं और कंसोल में क्या आ रहा है, किस फॉर्मेट में, लोअर केस। लोअर केस आ रहे हैं। लोअर,
लोअर में। क्यों आ रहा है लोअर? क्योंकि हम लोग कोड में क्या किए, टू लोअर केस यूज कर दिए, जिसके कारण हमारा डेटा जो है लोअर केस में हो गया। सपोज यहाँ पे आप अपर केस करिएगा तो आपका डेटा जो है अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया सबको? अब हम लोग क्या करते हैं, कोई डेटा डालते हैं जो यहाँ पे डेटाबेस में है ही नहीं, कुछ भी। चेक कीजिए क्या दिया, MOKJH लॉग्ड इन, ये कहाँ पर से आया? तो क्या ये डेटाबेस में है? नहीं है। इसका मतलब डिफॉल्ट हम लोग डिफॉल्ट में किए थे इसको। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ताकि हम समझ जाए, डिफॉल्ट। ठीक है, क्या दिया, डिफॉल्ट लॉग्ड इन। इट मीन्स जो डेटा हम लोग पास करेंगे, मीन्स जो भी नाम हम लोग पास करेंगे वो यहाँ शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो मैचिंग नेम है डेटाबेस में, मीन्स आप रजिस्टर्ड यूजर हैं पहले से, तो आपका नाम शो करेगा, लाइक SOHAN, सोहन। ठीक है, क्या दिया, सोहन लॉग्ड इन। और अगर वो डेटाबेस में है तो वो आ रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है, जब हम रियल प्रोजेक्ट पे जाते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन पे अगर आप सोचें तो इस टाइप से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई इशू यहाँ तक तो बताइए। No sir, but one issue sir. बोलिए। Sir, in switch case, sir, why we use a clone? Clone sir, ये जो डबल डॉट है ना सर, ये ही यूज क्यों कर रहा है सर? ये नहीं समझ में। सब इसका अपना स्टेटमेंट है। कहने का मतलब हर एक का अपना एक सिंपल सेंटेक्स होता है ना। अगर आप इफ लिख रहे हैं, ठीक है, तो इफ को कैसे लिखते हैं, इस टाइप से पास करते हैं। अगर हम ये बोलें कि इफ में ये क्यों पास कर रहे हैं, समझे, तो हर एक का अपना अपना एक सिंपल सेंटेक्स होता है, उसको हम नहीं कुछ कर सकते हैं ना। समझ में आ गया? तो उसी टाइप से जैसे इसके अंदर हम पैरेंथेसिस डालते हैं, उसके अंदर हम कंडीशन पास करते हैं, तो सेम उसी टाइप से अगर आप स्विच में जाते हैं तो केस जब आप लिखते हैं तो केस के बाद आपको कोलन डालना होता है। और कोलन डालने के बाद आप जो भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो भी कोड आप लिखना चाहते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। समझ गए? अगर आपको फंक्शन कॉल करना है, आप फंक्शन कॉल यहाँ लिख दीजिए, जैसे आप फंक्शन बनाते हैं। ऐसे लिख दिया हूँ अलर्ट नाम से, क्या है, अलर्ट टेक्स्ट। हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं, देखते हैं वर्क करता है क्या। और RAMU रामू लेते हैं, दे रहा है ना। रामू के केस में हमने अलर्ट लिखा। अब इस अलर्ट को हम लोग सोहन के अंदर देखते हैं पास करा के, क्या लगता है आएगा क्या अलर्ट? कोड देखिए, Yes, sir. सोहन, सोहन किस में है, 0 1 2 में। 2 के केस में आइए, क्या है, कंसोल। सोहन ये अलर्ट देगा क्या? तो फिर No, सोहन sir. अगर अभी मैच करेगा तो नहीं, क्योंकि इसके केस में वो नहीं है। देखते हैं क्या देता है। नहीं आया ना, सिर्फ सोहन आया, क्योंकि जो सोहन का जो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है केस स्टेटमेंट, उसके केस में फंक्शन कॉल नहीं है। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो बताइए। सर रियल टाइम में चलिए, स्विच का यूज कहाँ करते हैं सर? क्यों, मतलब किस लिए तो करते ये हैं बताए, सर? बस तो ये बताया ना, बस ये रियल टाइम का एग्जांपल तो दिया कि आपके पास डेटाबेस में डेटा है, सपोज दैट। ऐसा। देखिए कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम में आप ये नहीं कह सकते हैं कि स्विच का स्टेटमेंट या मतलब कोई भी चीज का कि मतलब एक फिक्स कोई यूज नहीं होता है। आप सेम चीज का यूज एल्स इफ के साथ कर सकते हैं। मीन जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, सेम काम आप विद द हेल्प ऑफ एल्स इफ कंडीशन में कर सकते हैं। मीन्स सब जो जितना भी ये है सारा है, सब के सब कंडीशनल ऑपरेटर है, मतलब कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन है सबका। इफ कंडीशन, मतलब सर इफ एल्स। हाँ, मतलब सर टेस्टिंग के लिए करते हैं क्या बस सारा कुछ? टेस्टिंग टेस्टिंग नहीं है, जब आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है
तब आप उस ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, उसके डेटा को प्रिंट कर रहे हैं या फंक्शन को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, मीन जो भी कोड वहां लिखना चाह रहे हैं आप लिख रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ रियल टाइम में जब आपको कंडीशन कुछ मैचिंग करवाना है और जब आपको सिर्फ 2 कंडीशन को मैच कराना है, ठीक है, 2 कंडीशन अगर है तो आप इफ एंड एल्स पे जा सकते हैं, सिंपल। बट आपको जहां लग रहा है नहीं मल्टीपल कंडीशन हमें वेरीफाई करवाना है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन वेरीफाई करवाना है तो आप इफ एल्स इफ जो कंडीशन चलता है उस पे जा सकते हैं, या उसी काम को हम स्विच के हेल्प से कर सकते हैं। तो ये है सारा, ये सब कंडीशनल में ही आता है। जो भी आपको लगे इजी आप उसको कर दीजिए यूज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर उसमें। इफ से तो इजी है सर स्विच, हाँ मतलब अपने अपने मल्टीपल के लिए। जगह पे वो, हाँ अपने जगह पे आपको खुद ही लगेगा कि हम इसको ले सकते हैं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। बट ये सारा जितना भी है सब कंडीशनल सर ऑपरेटर है। बोलिए। सर हम बोल रहे हैं यहाँ जो एरे काउंट कर रहा है 0 1 2 3 ऐसे करके, बोलिए। क्या हम 0 1 2 से हम वैल्यू ला सकते हैं सर? मतलब नहीं समझा। मतलब क्या वहाँ 0 पे है 1 ना से? 0 जो सर हाँ यहाँ पे मंथ नेम है, जो एरे काउंट कर रहा है ये रामू है वो 0 पे है, और हाँ मोहन 1 पे है, सोहन 2 पे है। तो क्या हम सर ओनली 0 या 1 से ये वैल्यू ला सकते हैं सर? जैसे हम प्रॉम्प्ट में सिर्फ, मोहन पास कर रहे थे ना सर। हाँ हाँ सर इसका तो तो ये 0 मंथ और नेम 1 जीरो नहीं ऐसे लिखना है, वहाँ पे पास करे तो आएगा सर? तो मंथ नेम नहीं लिखना है। नहीं सर ये रहेगा उसी से तो सर, ये वैल्यू आया ना। लिखना है। सर आप रामू और लिख, मोहन के जगह पे 0 1 2 3 रख देंगे तो क्या वैल्यू देगा रामू या नहीं? यहाँ पे आप कर आई रहे थिंक, हैं। हाँ आई थिंक वही क्वेश्चन होगा। नहीं नहीं सर वैसा क्वेश्चन नहीं है सर, मेरा कहने का मतलब ये है ना, जो एरे यहाँ पे ये ऐसे बोल रहे काउंट हैं कर रहे हैं सर, ये लाइन नंबर प्रॉम्प्ट। 4 है सर। उस यहाँ जो है रामू मोहन ये सब जो लिखा गया है एरे, और काउंट कर रहा है एरे की 0 1 2 से काउंट कर रहा है, तो प्रॉम्प्ट में क्या हम सर 0 पास करेंगे तो ये रामू का वैल्यू देगा सर, या 1 पास करें तो मोहन का वैल्यू देगा सर? दे सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? नहीं कोई कंडीशन नहीं, पास कर देंगे 0 को दे देगा। अगर तो ओके वो सर। फिर आपको ये पास करना होगा कि कहाँ पे लिखना है, जैसे कि 0 को तो इसके अंदर लिखना होगा ना, जो ये 0 है अगर इसके अंदर हम वेरिएबल को लाएंगे तब ना आएगा, कुछ उस टाइप से हमें लेके चलना यस सर, पड़ेगा। यस अगर सर। आप सपोज ये कन्वर्टेड में आ रहा है, यहाँ पे आपने 0 पास कर दिया, ठीक है, तो ये 0 बहुत पीछे हम लोग मतलब कंपेयर कैसे कर रहे थे, स्विच का वैल्यू, स्विच वैल्यू इक्वल टू केस वैल्यू, यही था ना। स्विच के अंदर का जो वैल्यू था वो प्लस केस का जो वैल्यू था वो, कहने का मतलब हो गया मंथ 0, मंथ 0 किसका है, केस वाले का। केस वाले के लिए, केस वाला के लिए हमने कर दिया मंथ 0, ठीक है। अब स्विच वैल्यू में क्या आ रहा है, फिलहाल क्या आ रहा था पहले, यूजर कन्वर्टेड ना, यूजर कन्वर्टेड। यहाँ पे यूजर कन्वर्टेड जो वैल्यू है, यूजर कन्वर्टेड में वैल्यू क्या आ रहा है अब, यूजर कन्वर्टेड के केस में आ रहा है 0 या 1 या 2, कुछ इस टाइप से। अब आप एक चीज सोचिए, 0 यहाँ क्या है, इक्वल टू में मंथ नेम 0, मंथ नेम 0 क्या है, वो तो हमें वैल्यू दे दिया ना रामू, तो क्या 0 को इक्वल करा सकते हैं अब, नहीं होगा, नहीं सर, नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा सर। ये जो 0 आ रहा है ये 0 का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि ये 0 किसके हेल्प से आ रहा है, आप लॉग इन किए फेसबुक पे जाकर, तो आपने जो लॉग इन किया आपका यूजर नेम ये 0 दिखा रहा है, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, यूजर को बोल रहे हैं 0 1 2 देने के लिए। हमें तो नहीं मालूम है ना कि हमारे पास जो डेटा है वो किस टाइप से लिखा हुआ है, 0 को कन्वर्ट करके जा रहा है
या आपका जो रियल डेटा है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता है। इसलिए जब हम फेसबुक लॉगिन करते हैं या ट्विटर, इंस्टा, कुछ भी, कोई वेबसाइट, तो वहाँ पे क्या रहता है, इंटर योर नेम, इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर पासवर्ड। वो आपको कभी ये बोला है कि हाँ यहाँ पे 0 कोड वर्ड में डालिए? नहीं, क्योंकि आप जब वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कोड अगर लिखा हुआ है, हम ये सोच के लिख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपना नेम को डाल रहे हैं। मीन्स यहाँ पर जो हम रामू ले रहे हैं हमारा डेटाबेस में है, ये सारा वैल्यू हमारा डेटाबेस का है, और ये सारा वैल्यू को हम यहाँ पे फेच करा ले रहे हैं। कैसे? ये कैसे आ रहा है? 0 के हेल्प से, ये आ रहा है 1 के हेल्प से, ये आ रहा है 2 के हेल्प से। तो डेटाबेस से हम 0, 1, 2 के जरिए ला रहे हैं, लेकिन यूजर को हम तो नहीं बोल रहे हैं ना कि आप 0 दीजिए, 1 दीजिए, 2 दीजिए। मतलब हमने उन्हें कोई कोड वर्ड तो नहीं दिया कि हाँ आपका जो वैल्यू है वो 0 पे है, आपका जो वैल्यू है यूजर नेम, ईमेल आईडी वो 1 पे है, फिर आपका 2 पे है, वैसा तो नहीं है। यूजर को सिर्फ ये पता है कि उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डाल रहे हैं, मान लीजिए, या मोबाइल नंबर। हम उस ईमेल आईडी को अपने कोड डेटाबेस में जो वैल्यू है उससे हम कंपेयर करा रहे हैं। और सपोज ईमेल आईडी हमारा रामू है, तो रामू कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ क्या? 0 पोजीशन पे, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मंथ नेम। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर 0 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, तो वो यूजलेस हो जाएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा वो टीडियस टास्क हो जाएगा कि आप इस एरे में जाके 0th पोजीशन वाले को ला रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो वैसा हम करना, यस वो सर। मुझे मतलब यूजलेस टाइप का है वो। देखिए, ये स्विच केस दिख रहा है एक सिंपल, क्योंकि हम लोग अभी सिंपल देख रहे हैं। बट सपोज दैट आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा है, तो आपको क्या करना होगा, सारा डेटा में सर्च कराना पड़ेगा सपोज दैट। तो वैसे केस में हम पहले जाएंगे फॉर कंडीशन पे, मीन्स हम लूपिंग करेंगे, सारा डेटा को लाएंगे चेक करके, और तब हम उसमें मैचिंग करा देंगे। तो इस टाइप से हम फिर ये वर्क करता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं को स्विच कंडीशन में इशू होगा। अगर है तो क्या हुआ, ये आ गया, अगर है तो बताइए, फिर हम लोग उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक बार डिबग करके देख लेता हूँ कोड को। चलिए इसको कोड को डिबग करता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉम्प्ट मेथड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। वैल्यू मांग रहा है, हम लोग यहाँ पे पास करते हैं मोहन। हमने पास कर दिया है कैपिटल लेटर बेट, स्मॉल MOHAN, मोहन, कुछ भी डाल दीजिए, ओके कीजिए। चलिए देखते हैं, अभी वैल्यू यूजर नेम क्या आ रहा है, जो हमने एंटर किया, बट लोअर केस करने के बाद क्या आएगा वो चेक करते हैं। नेक्स्ट करेंगे। क्या दिया, 1 सेकंड। यहाँ पे पहले क्या था, पहले जो हमने वैल्यू लिया कैपिटल एंड अपर केस लोअर केस दोनों मिक्स था, बट टू लोअर केस करने के कारण क्या हुआ, डेटा जो हमारा है वो कन्वर्ट हो गया कंप्लीट लोअर में। ठीक है, अब हम आ गए कहाँ पर, एरे के अंदर। अब जाइए नेक्स्ट कीजिए, क्या हुआ, इससे बाहर आ गए। ठीक है, अब स्विच केस में क्या डेटा आया चेक करिए। स्विच केस में आ गया मोहन। अब ये क्या करेगा, हर एक को चेक करेगा मंथ 0 पे कि क्या डेटा है। सपोज दैट हमें नहीं मालूम, देखते हैं कुछ दे रहा है क्या। ठीक है, 0 पे हमें राहुल शो किया। ठीक है, अभी राहुल जो शो कर रहा है ये देखिए कैपिटल R है। ठीक है, अब इसे पूरा को आप लीजिए और चेक कीजिए क्या दिया, लोअर केस आर, मतलब टू लोअर जो है इसने डेटा को कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया सबको? जब कर्सर रख रहे हैं आपको ये पूरा डेटा शो कर रहा है, ये कैपिटल आर के साथ है, कैपिटल फर्स्ट लेटर जो जैसे लिखा हुआ है वैसा है। बट आप जब लोअर केस पे जाते हैं तो आपको ये क्या करता है, कन्वर्ट कर दे रहा है डेटा को। ठीक है, ये पूरा को सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको इसका आउटपुट शो हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यूजर कन्वर्टेड के केस में क्या हो रहा है। मोहन दे रहा है और
क्या ये कंडीशन मैच किया? तो नहीं, यहाँ पे रामू है और यूजर कन्वर्टेड में क्या आया है डेटा? कुछ है क्या? मोहन है। मतलब फर्स्ट तो मैच नहीं किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप इनटू करते हैं हम लोग। देखिए स्टेप इनटू में कहाँ जा रहा है वो देखते हैं। तो अभी केस को मैचिंग करवाया, केस मैच नहीं हुआ। देखिए जैसे इफ ब्लॉक में अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है, ठीक है, तो क्या वो एग्जीक्यूशन के लिए उस ब्लॉक में एंट्री करता था या नहीं? अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा था इफ के केस में, तो ब्लॉक में एग्जीक्यूट अंदर एंट्री होता था या नहीं होता था? नहीं होता सर। करली नहीं होता था। तो जिस टाइप से इफ कंडीशन में करली ब्रैकेट के अंदर इंटर नहीं करता था, उसी टाइप से यहाँ पर केस में भी है। अगर केस सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कोई लाइन में एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये अब कंडीशन को मैच कराने के लिए इसके पास आया, तो मंथ 1 चेक करता है, मोहन है। ठीक है, यूजर का जो वैल्यू है क्या है? मोहन है। मतलब दोनों मैचिंग कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा? एंट्री करेगा। एंट्री कर गया कंसोल पे, और यहाँ पे वैल्यू हमारा आ गया। समझ गए? अब नेक्स्ट जाते हैं, ब्रेक किया, फंक्शन को कॉल कर दिया, मतलब फंक्शन से बाहर निकल गया, बस हो गया। समझ में आ गया? तो इस टाइप से क्या हो रहा है, जहां पे भी कंडीशन मैच करेगा तभी वो उसके अंदर एंट्री करेगा। जैसे इफ ब्लॉक में अंदर एंट्री नहीं करता था, वैसे ही यहाँ भी आपको एंट्री नहीं करेगा। तो कोई भी कोड लिखिए, उसको जरूर डिबग कीजिए। विदाउट डिबगिंग कोड मत लिखिए। कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। कोई दिक्कत है? चलिए, तो हम लोग अभी तक क्या किए? हम लोग ने 2-3 एग्जाम्पल पे देखा कि हम स्विच स्टेटमेंट में वर्क कैसे करते हैं। अब यही चीज यहाँ पे दिखा रहा है आपको मंथ के केस में। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एरे के अंदर आपका डेटा लिखा हुआ है, जैन फेब जो भी चीज है ये चीज रहा। फिर डेटा आपको लाना है, तो क्या कीजिएगा? मंथ नेम जो एरे का मतलब एरे है, उसमें 0 लगाइएगा, फिर 1 लगाइएगा, फिर 2 लगाइएगा। तो उस टाइप से क्या होगा? डेटा हमारा मैच करेगा। जब डेटा यहाँ पे मैच करेगा, आपको शो कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से सेम उसी कंडीशन को हम संडे मंडे के हेल्प में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, अब इसको देखते हैं, इस एग्जाम्पल को पहले समझिए। स्विच कंडीशन जो भी था वो हो गया, बस उतना ही था उसमें। अब हम लोग सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए, ये देखिए, ये क्या करेगा? तो सबसे पहले क्या कर रहा है? स्विच, मतलब जो कोड हम लोग बाहर वेरिएबल से ला रहे थे, उसी को यहाँ पे क्या हुआ? अंदर में लिख दिए हैं। चलिए इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो वेरिएबल बना देंगे, लेट लेट वीकडेज इक्वल टू कुछ भी वेरिएबल लिख दिया है, 1 सेकंड। वीकडेज इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट डे। ठीक है, वीक डेज। देखिए करेगा क्या चीज यहाँ पर? यहाँ पे क्या है? तो डे इक्वल टू संडे, डे इक्वल टू सैटरडे। कंसोल नहीं है क्या? चलिए हो गया।
अब देखिए यहाँ पे करते हैं क्या, लाइन तो नंबर ये 16 ऊपर 17 को सुधार दीजिए, 16 और 17। 16 और देखते हैं क्या करेगा ये। तो जो भी दिन यहाँ मैच करेगा, ठीक है, ये जो है वो नंबरिंग देगा, लाइक 0 1 2 3 ये देगा वैल्यू। तो 0 का मतलब क्या हुआ, संडे हमने कंसिडर करके चला, तो अगर 0 होगा तो डे संडे ये प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग। फिर यहाँ मंडे, फिर यहाँ ट्यूजडे, हम लोग वहाँ मैनुअली नहीं एंट्री कर रहे हैं कुछ भी। आज कौन सा दिन है, आज है आपको फ्राइडे, ठीक है, ये आपको आउटपुट डायरेक्ट फ्राइडे देगा। देखते हैं चेक करके, वेट, ये कहाँ पे एरर दिया, एरर कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान नहीं दिया क्या, क्या दिया फ्राइडे, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ से सिस्टम से डिटेक्ट किया कि आज का डेट ये किसने निकाला, न्यू डेट एंड गेट डे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हमें ये सीखेंगे कि हम लोग डेट डे कैसे निकालते हैं सिस्टम से। तो ये क्या किया, इसने आपको डेट निकाला और यहाँ उससे डेज निकाल लिया डेट के हेल्प से। तो डेज निकालने के बाद डे को ये 0 1 2 में देगा, ये संडे मंडे ट्यूसडे नहीं देगा। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या दे रहा है ये, चलिए कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। क्या दिया आपको, ये 5 दिया। अगर आप सिस्टम का डेट को चेंज कर देते हैं सेटिंग में जाके तो शायद ये आपको चेंज हो जाएगा, देखते हैं चेंज कर सकते हैं क्या। हुआ क्या, थर्सडे हो गया, ठीक है। अब कोड को देखिए, यहाँ पे थर्सडे मैंने कर दिया है, थर्सडे कोड को देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या दे रहा है, नहीं डिटेक्ट नहीं किया इसने, वेट, फालतू का डेट चेंज कर दिया, इसको सेव कराता हूँ पहले। नहीं ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, गड़बड़ है सेटिंग में ही तो, ठीक है। तो इस टाइप से एक्चुअली होगा क्या, जो भी डेट रहेगा, आज मान लीजिए ये फ्राइडे दे रहा है, कल आपको कहीं पे चेंज हम लोग रख जाए, ये रखता है, चलिए ओके, टाइम जोन चेंज करने पे शायद हो सकता होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही अगर ये फ्राइडे है, आप इसी कोड को अगर कल आप एग्जीक्यूट कीजिएगा तो आपको ये सैटरडे देगा, क्योंकि ये ऑटो डिटेक्ट करेगा, आपको कुछ करने का जरूरत इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी न्यू डेट एंड गेट डे कर लिया है, ठीक है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और ये आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे अगर आप सर न्यू डेट लिखिए, हाँ बोलिए, जावा स्क्रिप्ट में स्विच के केस में ब्रेक के साथ कंटिन्यू का नहीं होता है क्या? ब्रेक के साथ नहीं होता है, उसका कंटिन्यू कंटिन्यू होता है, उसको हाँ हम तो लोग पढ़ेंगे बाद में। यूज होता है। होता है, वो अलग टॉपिक ही है, मिस्टेक उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे, हम लोग ब्रेक भी डिस्कस नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं स्विच को, हम लोग ब्रेक को भी नहीं देखने गए हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है। जब हम देखिए ओके यहाँ पे जब न्यू डेट को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए हमारा कंसोल में क्या दे रहा है, क्या दिया, फ्राइडे फेब 24 2023, टाइम आपको कितना है 22:06 56 सेकेंड, और ये टाइम कौन सा है, तो कितना है ये GMT से 5 आवर 30 मिनट एक्स्ट्रा है, और ये टाइम आपका इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है, समझ में आ गया। तो जब हम लोग न्यू डेट करते हैं आपको वो करेंट टाइम देगा, अभी का टाइम देगा। अभी आपको कितना बजा, 22:06, आप पेज रिलोड कीजिए, ये टाइम चेंज करेगा कितना हुआ 22 से 7 हुआ, फिर रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करते जाइए, सेकंड को देखिए, सेकंड आपका चेंज हो रहा है 29,
32, 32, 33, 34, 35, ये आपका सिस्टम का टाइम को लेकर ये यहाँ पे वो डिटेक्ट करके देते जाएगा। सिस्टम टाइम या सर्वर टाइम, जनरली ये सर्वर टाइम लेता है, सिस्टम टाइम नहीं लेता है। तो जो सर्वर चलता है उसके हिसाब से वो ले लेता है। समझ गए? तो ये हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बार-बार इसको रीलोड करेंगे, नहीं। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे डेट टाइम को, तो हम लोग घड़ी बनाएँगे, तो ये ऑटोमेटिक टाइम ये आपको कैलकुलेट कर मतलब देना स्टार्ट करेगा। ठीक है? हमें ये मतलब नहीं है फिलहाल अभी, हमें मतलब था क्या सिर्फ़ डेज़ से। तो हम लोग ने क्या किया, स्विच के हेल्प किसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी है, हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिक आपको सिस्टम के हेल्प से डिटेक्ट करके दे देगा। तो ये था एक तरह से आप समझ सकते हैं कि रियल टाइम सिनेरियो कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग ने पिछला जो एग्ज़ाम्पल देखा लॉगिन का केस का, वो भी आपको था, ठीक है? तो अब आपको रहा ब्रेक कीवर्ड। तो अभी हम लोग जो भी डिस्कस किए, ये था आपको स्विच का कंडीशन। फिर है आपका ब्रेक कीवर्ड, डिफ़ॉल्ट, ये सब जो भी है, हम लोग आगे देखेंगे इसको, एक साथ हम लोग नहीं देखेंगे। तो इसमें कोई और नहीं है, बस इतना ही था कंडीशन। चलिए, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।